Good morning students, welcome back to online learning. In this video we are going to discuss about the chemical properties of this halogen derivatives, which means alkyl halides. Okay? So there are many chemical properties of these halogen derivatives. In that we'll discuss today the laboratory test of haloalkanes, nucleophilic substitution reaction of haloalkanes, and also we'll discuss the elimination reaction. Okay? So let's see one by one. फर्स्ट वन लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोजन. सो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोजन यहाँ पर टेस्ट किया जाता है एक कंपाउंड को कि उसमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं. उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं. तो इन दिस टेस्ट व्हाट वी डू, वेरी सिंपल, एक हैलोजन लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरी सिंपल, अल्काइल हैलाइड रहेगा और एक्वस NaOH रहेगा या फिर KOH रहेगा, जिसको वार्म करने पर, यानी कि व्हेन वी हीट दीज टू, वार्मिंग विद द एक्वस NaOH और KOH, दिस रिएक्शन गिव्स हैलाइड आयन. तो यहाँ पर क्या होता है, हैलाइड आयन देता है. तो इस मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी ऐड टू दिस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, दिस आयन वी आर गोइंग टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट या फिर एंड ऑल्सो nitric acid. So what happens in this reaction after adding these two? A precipitate is formed in that solution which confirms the presence of halogen in the organic compound. Very simple. सबसे पहले क्या करने का, very simple, इसमें अल्काइल हैलाइड क्या करने का, उसके साथ एक्वस NaOH या फिर KOH लेने का. उसके बाद आयन मिलता है, यानी कि हैलाइड आयन मिलता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड ऑल्सो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे. उसके बाद ऐड करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा. ये सॉलिड, अ प्रेसिपिटेट विल फॉर्म व्हिच गिव्स द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हैलोजन टेस्ट ऑफ halogen test in the lab. ठीक है, so let's see the nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. ठीक है, which is our next chemical properties. So here before going to this it has SN2 and SN1 reaction. So before going to that, we'll see little bit about this nucleophilic substitution reaction. Very simple substitution. मालूम है, एक कंपाउंड में दूसरे ग्रुप को, अगर एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में अगर एक ग्रुप को रिमूव करके दूसरे ग्रुप में ऐड करना ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. वहां पर वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ ग्रुप bonded to a carbon in a substrate, it is substrate before it giving to the product, that is substrate, initially substrate होता है. ठीक है, so when a group या फिर एक molecule, एक atom जो होता है, एक ions भी समझ लो, that is bonded to a carbon in the substrate, that is replaced by the another ion or another molecule to get the product with there is no change in the state of hybridization. यहाँ पर जो sp2 hybridization, sp3, sp hybridization, जो भी hybridization होता है, हमारा जो state of carbon, कोई भी changes यहाँ नहीं होता, as it is वही रहेगा. उसको हम बोलते हैं substitution reaction. ठीक है, तो substitution reaction वो होता है in case अगर न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल अगर या आयन जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स बोलते हैं. ठीक है, इनके हैलो ग्रुप हम लोग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, सो इट हैज टू ways to explain the nucleophilic substitution. पहले आएगा बायोमोलिकुलर रिएक्शन और उसके बाद आएगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन वेरी सिंपल. This S means we know that substitution, N means nucleophilic, and 2 which means bimolecular reaction. Why we call this SN2 reaction? I will tell you. And also we have SN1 mechanism reaction. ठीक है, in that SN1 which means nucleophilic substitution of unimolecular reaction. Okay, so let's see these two one by one. Okay, so here SN2 reaction में what happens in this reaction, and one more thing in this nucleophilic substitution reaction, what happens here, the CX bond in alkyl halides is a polar covalent bond. Before previous video में मैंने बताया था polar covalent bond होता है इन दोनों का जो bond है, because they carries partial negative charge and also partial positive charge at carbon atom. ठीक है, so here what happens, the same thing here, the CX bond in alkyl halides is a polar covalent bond and the carbon in CX bond is positively
polarizer, ठीक है. तो in other way if we say that the CX bond is an electrophilic center बोला जाता है, ठीक है. So this is about this nucleophilic substitution reaction. So let's see the SN2 reaction. So what happens in this SN2 reaction? Very simple. In this the reaction is only between the, I am taking the example of methyl bromide and also hydroxide ion, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है? Very simple. In this reaction is between methyl bromide and hydroxide ion to give methanol. यहाँ पर alcohol देता है. इन दोनों का reaction follows the second order kinetics. Second order kinetics क्या है? That is the rate of this reaction. इन दोनों का जो rate of this reaction, it depends on the both concentration of this reacting species. What are the species we are using? We are using methyl bromide and also hydroxide group. These are the species. तो यहाँ पर क्या होता है? इस rate of this reaction is depends on these two species, ठीक है. So they are, here you can see in the definition, namely methyl bromide and also hydroxide. Hence it is called as substitution nucleophilic bimolecular reaction बोला जाता है. Very simple. SN2 reaction यही reaction है, ठीक है. तो very simple. इसमें rate of the reaction 2 होता है क्योंकि rate is equal to K is depends upon, इसमें दोनों पे डिपेंड रहता है. दो species जो substrate में है, methyl bromide and also hydroxide ion, ठीक है. So let's, this is about very simple, यही SN2 reaction है, ठीक है. यहाँ पर फिगर में तुम लोग को बताया गया है कि कैसे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है पीछे से अटैक करता है किस पे? इस सेंटर कार्बन पे. देन उसके बाद इन द ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसमें? इन बिटवीन दिस Br माइनस एंड OH माइनस. तो क्यों इसमें ये होता है? बिकॉज it is one is going to break and another one is going to join, यानी कि another one is going to make. So totally it is also called as bond breaking and bond making. So after the this reaction will get the methanol and also Br minus. So overall the rate of this SN2 reaction is 2 because the concentration is depends on this reaction to the both reacting species, ठीक है. So the it is a single step mechanism reaction, ठीक है. इसमें कोई डबल 2 स्टेप्स 3 स्टेप नहीं है, ठीक है. SN1 में मिलेगा आपको 2 स्टेप रिएक्शन मिलेगा, लेकिन इसमें ओनली अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है. तो जो कि इसमें सिंगल स्टेप में साइमल्टेनियसली क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग या फिर बॉन्ड मेकिंग होता है, ठीक है. एंड ऑल्सो बैक साइड में जो अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी कि OH माइनस अटैक करता है किस पे? कार्बन में, जो कि विच इज अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिस साइड अपोजिट टू दैट द लिविंग ग्रुप, ठीक है. तो यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है? हमारा Br माइनस है और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या है? OH माइनस, ठीक है. So this is about the SN2 reactions. Let's see the SN1 mechanism reaction. So this is here the SN1 mechanism reaction. In this mechanism reaction, it has 2 steps. It including 2 steps. यहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर क्या होता है? कार्बोकेटायन फॉर्म होता है. उसी से सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है जो कि अटैक करता है. Let's see the SN1 mechanism. So in this the reaction in this SN1 mechanism, only in between I am taking the tertiary butyl bromide and also hydroxide ion. So यहाँ पर क्या होता है? tertiary butyl bromide here and hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol. Very simple, यहाँ पर alcohol ही मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है? It follows the first order kinetics. In this SN2 reaction में क्या होता है? That follows the second order kinetics. यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करता है. तो वो क्या है? दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दी वन स्पीसीज, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीसीज पे डिपेंड है सबस्ट्रेट में, विच इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सिर्फ इसी पे डिपेंड रहता है इस SN1 मैकेनिज्म में. इस पे हाइड्रोक्साइड आयन में डिपेंड नहीं रहता है. दैट इज हेंस वी कॉल इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है. यूनि विच मीन्स वन, by which means 2. That is why we called it as SN1 and SN2 reaction mechanism, ठीक है. So here we write the rate of this reaction, that is K is equal to this,
ठीक है, द प्रोडक्ट ओनली. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस SN1. मेन डेफिनेशन यही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन. ठीक है, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में क्या होता है देखते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इट इंक्लूड्स ओनली 2 स्टेप्स. ठीक है, सिर्फ 2 ही स्टेप्स है इस SN1 मैकेनिज्म में. व्हाट आर दोस विल सी. सो हियर इन दिस SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म. सबसे पहले ये क्या होता है, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म होता है. एंड सेकेंड में क्या होता है, हेटेरोलिसिस होता है. हेटेरोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड. दिस इज आवर हैलो ग्रुप विच इज X. CX बॉन्ड में क्या होता है, in the slow and also it is reversible first step to form the planar carbocation intermediates. ठीक है, यहाँ पर carbocations form है, which means the carbon is carrying a positive charge, carbocations intermediates. ठीक है, this is low step reaction. तो यहाँ पर क्या होता है, the attack of nucleophile mixed, the attack of nucleophile on the carbocations intermediate in the फास्ट सेकेंड स्टेप. ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है, जो कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, अटैक करता है किस पे, कार्बोकेटायन. सबसे पहले क्या होता है, हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है और जो लिविंग ग्रुप है वो चला जाता है. ठीक है, जो कि स्लो रिएक्शन होता है. इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से क्या होता है, हमारा जो OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है किसको, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को अटैक करता है. देन क्या होता है, अल्कोहल फॉर्म हो जाता है. ठीक है, विच मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है. यही हमारा SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन. मैकेनिज्म में क्या है, वेरी सिंपल. क्या अटैक किया, क्या हुआ, क्या फर्स्ट स्टेप में क्या था, स्लो था या फास्ट था, वो लिखने का रहता है. सेकेंड स्टेप में फर्स्ट रिएक्शन होता है जो कि अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, दिस इज अबाउट दी. एंड वन थिंग व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन द SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ chiral carbon in an optically active substrate. मैंने chiral carbon मतलब क्या बोला है, वो कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अपना बॉन्ड बनाया हो उसको हम बोलते हैं chiral carbon atom. तो optically active substrate, the product is formed in nearly racemic form. racemic form क्या होता है, 2 फॉर्म 2 होते हैं. मैंने एनेंशियोमर्स में समझाया था ना, that is the racemic form. So this indicates that SN1 reaction proceeds mainly with racemerization बोल सकते हैं. This means both the enantiomers of product are formed in almost equal amount में फॉर्म होता है. दोनों भी जो enantiomers फॉर्म होता है तो इक्वल अमाउंट में फॉर्म होता है. ठीक है, so let's see the next one which is our chemical properties, elimination reaction. elimination reaction मतलब कुछ चीज को हम लोग eliminate करना. ठीक है, वही रहेगा. वो क्या है elimination reaction, we'll see in the next. So here the elimination reaction, what we going to eliminate in this elimination reaction is dehydrohalogenation. See, dehydrohalogenation मतलब यहाँ halogenation यानी कि halo group भी है और hydro which means hydrogen group भी. तो we are going to eliminate both, यानी कि 2 लोग eliminate करने वाले, which is hydro group and also halogen group. ठीक है, so that is we called dehydrohalogenation. So let's see what happens in this elimination reaction. So here, when alkyl halide having at least 1 beta hydrogen is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide and it undergoes the elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from alpha carbon, which results in the formation of alkene. Alkene is nothing but presence of double bond. See here in the reaction you can see there is a presence of showing the presence of double bond in the product. So overall इसमें क्या होता है, 2 पोजीशन रहते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है. एक पोजीशन रहेगा हमारा अल्फा पोजीशन और दूसरा रहेगा बीटा पोजीशन. ठीक है, अल्फा पोजीशन में क्या रहेगा, हैलो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. सी हियर द शोइंग X इन द पोजीशन ऑफ 1 कार्बन एंड हाइड्रो ग्रुप इन द सेकंड पोजीशन. इसको हम लोग इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, वी आल्सो कॉल्ड इट एज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी सेम होता है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी सेम होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में जब अल्काइल हैलाइड में एटलीस्ट बीटा पोजीशन में एक हाइड्रोजन रहेगा
जो कि बॉयल किया जाता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है। तो जब क्या होगा, इट अंडरगोज द एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा जो कि कार्बन सेकेंड कार्बन पोजीशन पे अटैच्ड है, और दूसरा जो है पहला वाला यानी कि अल्फा कार्बन पे जो हैलोजन एटम्स है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्कीन में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। So you can see the in the reaction, you can see the product shows the presence of alkene in the product. ठीक है। So this reaction is beta elimination and also it is called as 1,2 elimination reaction. So as it involves the elimination of halogen and beta hydrogen atoms. So that is why we call it as 1,2 elimination and also beta elimination reaction. Very simple. Dehydrohallucination का example देख लिया। Dehydrohallucination मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप को हम लोग निकालना यानी कि एलिमिनेट करना, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक। सो दिस इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और यू कैन से हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो लेट्स सी सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर इन दिस टॉपिक, दैट इज इन दिस चैप्टर, दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्शंस देखेंगे इस अल्काइल हैलाइड्स का। एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दोस वन बाय वन, ओके। सो हियर सी द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ओके। सो लेट्स सी, सो हियर इन दिस active metals, reactions with the active metals like sodium, magnesium, cadmium, they readily combine with this alkyl halides like alkyl chloride ले लो या फिर alkyl bromides ले लो, alkyl iodides ले लो, कोई भी alkyl halo group ले लो। तो what happens, these active metals readily combine with these alkyl halides to form the compounds which containing the carbon और metal bonds, ठीक है। जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो कार्बन और एक मेटल के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वेरी सिंपल, वहां पर क्या होता है, एक कंपाउंड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मेटल्स या एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, एक कार्बन और एक मेटल के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सी व्हाट हैपेंस, वेरी सिंपल, in this magnesium reaction when alkyl halide is treated with this magnesium in dry ether। यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्राई ईथर इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट विच इज सुटेबल टू दिस रिएक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट एज अ ड्राई ईथर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि देता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड रिएजेंट्स विच इज Grignard reagent and it is very simple reagent। इसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग Grignard reagent भी बोला जाता है। Let's see the reaction what happens here। See, I am taking the alkyl halide and this alkyl halide I am going to treat this with this magnesium in the dry ether। What happens when I am using this solvent, it gives the alkyl magnesium halide। ना कोई वहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कोई वहाँ पर बॉन्ड मीक होता है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट देता है वो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तीनों भी देता है एक साथ, जिसको हम बोलते हैं Grignard reagent बोलते हैं, ठीक है। सो आई हैव सम एग्जांपल विद दिस Grignard reagent and also some example। Let's see what are those examples। So here I am taking this it is very reactive compound बोला जाता है, ये जो Grignard reagent है it is very reactive compound। So when I am going to use this with this alcohol and ammonia group, so क्या देगा, see here they react with water, it also react with water, या फिर the compound which containing the hydrogen attached to electronegative element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो वो होता है जिसकी अट्रैक्टिविटी ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड है वो भी लिया जाता है, ठीक। तो जब क्या होगा, तो इस Grignard reagent और इस कंपाउंड के साथ जब भी क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो व्हाट इट विल गिव यू, हाइड्रोकार्बन्स देता है, दोनों में भी हाइड्रोकार्बन्स है। सी दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन with this
active metals which is magnesium. ठीक है, so this is one example for this active metals और अल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्शन है. और दूसरा रिएक्शन भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर एग्जांपल वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन भी है. सबसे पहले हम लोग वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं. सेकेंड वन जो आता है रिएक्शन विथ मेटल, एक्टिव मेटल्स का. लेट्स सी व्हाट इज दैट वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. सो हियर द वर्ड्स रिएक्शन वेरी सिंपल. वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटेलिक सोडियम इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट. मेटेलिक सोडियम तुम लोगों ने देखा होगा, वो एक मेटल की तरह होता है. जस्ट लाइक हमारा जो नॉर्मल सोडियम होता है पैलेट के साइज में व्हाइट में होता है, वो नहीं रहता, वो दूसरा होता है. ठीक है, जब लैबोरेटरी में रहेगा तो मैं बता देती हूँ कि क्या है. सो अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है हमारे मेटेलिक सोडियम इन ड्राई ईथर, जो कि हमारा एक सॉल्वेंट है, इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, and form higher alkene. क्या होता है, सिंगल बॉन्ड alkenes, this containing double the number of carbon. see डबल नंबर है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. see डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड. क्या होता है, जो कार्बन प्रेजेंट है अल्काइल हैलाइड में दैट इज डबल नंबर में रहता है. सो यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दो मोल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल नंबर में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम लोग क्या लेंगे, कंपाउंड बी, जिसके साथ हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं मेटेलिक सोडियम भी, वो भी हम लोग क्या लेंगे, डबल में लेंगे. ठीक, सो उसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन. इसका दूसरा भी है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. विद दैट एग्जांपल आई विल शो यू व्हाट इज दैट. ठीक है, so here this is the example and also there is some other example. Just see here another example. I have taken ethyl bromide which gives with the sodium metal which gives the butane दिया देता है, and also 2 moles of this sodium halide भी देता है. ठीक है, so this words reaction is very simple and also I have some different example. when a mixture of, जब हम लोग दो मिक्सचर लेंगे अल्काइल हैलाइड की, when a mixture of two different alkyl halides is used, what happens there, all the 3 possible alkenes, जितने भी possible alkenes जो होता है that is formed in the product. so first here I am taking this methyl bromide and also ethyl bromide मैंने लिया है. तो यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स है. जब हमने इसको सोडियम मेटल्स के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस solvent which is dry ether, so what it gives 3 possible alkenes. First one is ethane. See here it has given the ethane and propane and also butane. So 3 possible alkenes are formed here. So this is the good example which is used to explain the words reaction. And so this is about the reaction with active metals, and also there are some other important like reaction of haloarenes आएगा, उसमें से reactions of haloarenes with metals, and also you will have that nucleophilic substitution. SN haloarenes very important है, उसमें से हम लोग दो देखेंगे, resonance effect देखेंगे क्या होता है, and also we'll see the sp2 hybrid state of carbon देखेंगे, and also we'll see the nucleophilic substitution of aryl halides में क्या होगा. हम लोग जब इंट्रोड्यूस करेंगे हैलोजिनेशन, यानी कि हमारा अराइल ग्रुप में हम लोग जैसे कि क्लोरीनेशन हो गया एंड नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वो देखेंगे विद द रिएक्शन. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट, सो हियर दिस रिएक्शन ऑफ हैलोएरेंस, जैसे कि इसमें रिएक्शन ऑफ हैलोएरेंस विद मेटल्स आएगा. वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं क्या यहाँ पर रिएक्शन में क्या आएगा, ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन का एग्जांपल. ठीक है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन एंड वर्ड्स रिएक्शन बोथ आर सेम बट लिटिल डिफरेंट. यहाँ पर क्या है, द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स. ठीक है, ये अराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है. सो अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड विद द सोडियम metal in dry ether we are using as a solvent to give the substituted aromatic compound, that is aromatic compound देते हैं, substituted aromatic compound, यानी कि जो सोडियम मेटल है और हैलोजन ग्रुप है वो अलग हो जाता है. ठीक है, सो aromatic compound जो देता है that is our
वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं. So and also we have in this reaction of haloarenes में nucleophilic substitution, SN1 reaction of haloarenes. In this we'll see the resonance effect in the next video. Okay. Thank you, students.